Hello students, my name is Praveen Hooda, Assistant Professor in Physics from पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स के पेपर से है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स जो पेपर है हमारा, उस पेपर में जो लास्ट इक्वेशन है हमारी, उसका फर्स्ट टॉपिक है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन और फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन। तो सबसे पहले जो है हम लेटेंट हीट को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेटेंट हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ यूनिट मास। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट, एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग we can take example of water. As we know, at 0 degree Celsius water is in its solid form, that is ice, and we also know when ice melts at 0 degree Celsius it completely converts into water. So when this process takes place, some amount of heat is absorbed. That is, when ice converts into water at 0 degree Celsius, some amount of heat is absorbed. This type of heat is known as latent heat. Similarly, when water boils at 100 degree Celsius and it converts into steam, then also some amount of heat is absorbed. That heat is also latent heat. तो लेटेंट हीट आपका क्लियर हो गया होगा सभी का। अगर हिंदी में हम बात करें, लेटेंट हीट को बोलते हैं हम गुप्त ऊष्मा, यानी छुपी हुई ऊष्मा। ठीक है, कि जो हम जो है ना सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, यानी कि जब भी हमारी कोई भी सब्सटेंस अगर अपना फेज चेंज करता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, इवॉल्व आउट करेगा उस टाइम पे, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम फेज ऑर्डर ट्रांजिशंस के ऊपर। तो जो फेज ऑर्डर ट्रांजिशंस हैं वो टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। तो जो अभी एग्जांपल हमने लिया था वाटर का, जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है, तो वो ट्रांजिशंस होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस। बट देयर आर सम अदर ट्रांजिशंस इन नेचर इन विच neither heat is absorbed nor it is evolved. Such type of transitions are called second order phase transitions. For example, when a substance changes its state from paramagnetic to ferromagnetic, or when we go from helium 1 to helium 2, both these are example of second order phase transitions. अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये मेनली डील करती है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा जब हम किसी सब्सटेंस का प्रेशर चेंज करते हैं। दैट इज, दिस इक्वेशन डील्स विद द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू चेंज ऑफ प्रेशर। यही हमें स्टडी करना है और जो है ये ड्राइव करना है। This equation was first derived in 1834 by Clapeyron and in 1850 by Clausius. That's why it is also called as Clausius-Clapeyron equation. तो इस इक्वेशन का डेरिवेशन जब हम करेंगे तो हम एक पीवी डायग्राम लेंगे, यानी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम लेंगे, और उसके ऊपर जो है दो आइसोथर्म्स ड्रॉ करेंगे, जैसा कि अभी डायग्राम के अंदर दिखाया गया है।
derivation of first latent heat equation. Here we draw a PV diagram which is shown on the screen. ABCD is an isotherm at temperature T. Along AB the substance is in vapor state. Along BC the substance is in both states, that is liquid and vapor state, and along CD the substance is in liquid state. So as I have already told you that along AB the substance is in vapor state, and if we now increase the pressure of the substance, then the substance starts to change its state from vapor to liquid at point B at pressure P and temperature T as shown in the diagram. From B to C the substance remain in mixed state, and at C the substance completely converts into liquid state. And clearly from figure we can say that along BC the pressure on the substance remain constant having value P, and the temperature is already constant at a particular value T. If we further increase the pressure, the substance remains in liquid state, which is shown as CD. Similarly, EFGH is another isotherm. Along EF the substance is in vapor state, and if we start to increase the pressure, then at F the substance started to convert its state from vapor to liquid. From F to G again the pressure remains constant at a value P minus dP, and the substance remains in both states, liquid and vapor. At G the substance completely converts its state from vapor to liquid. If we further increase the pressure, then there will be no change on the phase of the substance, that is it always remains in liquid state, which is shown along curve GH. So if we draw CL and BF, which are represented by dotted lines, CL and BF, and CG is also shown in the diagram as dotted line. CG and BF both are adiabatic curves, and the change in temperature along these adiabatics is dt, that is when we come from point B to F adiabatically, then the substance temperature decreases by an amount dt. Similarly, if we go from G to C or L to C, the temperature of the substance increases by an amount dt. CBMLC and CBFGC are almost same. So we take CBMLC as a Carnot cycle, in which there are two isotherms along CB and LM and two adiabatics along BF and CL. From C to B
Cb is an isotherm at temperature T and the volume increases from V1 to V2 by absorbing an amount of heat equal to L। यहां पर हमने L इसलिए लिया है क्योंकि टेम्परेचर जो है सब्सटेंस का वो कांस्टेंट है और सब्सटेंस अपनी स्टेट जो है वो C से B पर जाने पर चेंज करने लग रहा है। बिकॉज एट C द सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट एंड एट B द सब्सटेंस इज इन वेपर स्टेट एंड फ्रॉम C to B it converts its state from liquid to vapor. So here phase change occur. So the heat absorbed here is latent heat. So we can say that during isothermal Cb the state of the system changes with the change of volume V1 to V2 at temperature T by absorbing an amount of heat equal to L. Now from B to M, that is along BM adiabatic, as we already know that during adiabatic process the substance never exchange heat with surroundings. So neither the heat is absorbed nor the heat is rejected or evolved by the substance. Along BM the temperature of the substance decreases by an amount dt. क्यों? क्योंकि Cb के along यानी ABCD जो आइसोथर्म थी उस पूरी आइसोथर्म का जो टेम्परेचर था वो T था और EFGS का जो टेम्परेचर था वो T माइनस dt था और जो B से M या B से F जो हम कह रहे हैं एडियाबेटिक, वो एडियाबेटिक हमारी इन दोनों आइसोथर्म्स को जोड़ने लग रही है। तो B के ऊपर जो टेम्परेचर था वो T था, F पे या M के ऊपर जो टेम्परेचर था वो हमारा T माइनस dt था। तो B से M के ऊपर आने पर हमारा जो सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हुआ वो हमारा है dt के इक्वल। अगेन Ml is an isothermal having temperature T minus dt. Here the volume of the substance decreases because at M the volume of substance is V2 and at L the volume of the substance is V1 and clearly from the diagram V1 is less than V2. So the volume of the substance is decreases along isotherm Ml. And the heat rejected by the substance by decreasing its volume is L minus dl. That is dl is the amount of the heat converted into work by the substance during the Carnot cycle CBMLC. तो ये यहाँ से क्लियर हो गया हमारा कि जो वर्क सब्सटेंस ने किया है वो हमारा DL के इक्वल है क्योंकि CB के अलोंग जो है उसने L हीट एब्जॉर्ब की थी और ML के अलोंग जो है वो L माइनस DL हीट रिजेक्ट करने लग रहा है। तो जो DL अमाउंट है वो क्या हो गया हमारा वर्क के अंदर कन्वर्ट हो गया है सारा। L से C के ऊपर जब हम जाते हैं फिर से एक एडियाबैटिक है, यहां पर हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। अगेन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस because at L the temperature of substance is T minus dt and at C the temperature of the substance is T. So the temperature of the substance increases by an amount dt. तो डायग्राम जो है हमारा ये कंप्लीटली यहाँ से एक्सप्लेन हो गया है। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट हीट इंजन which works on
दिस कार्नोट साइकिल CBMLC। तो जो एफिशिएंसी होगी हीट इंजन की वो होती है हमारी टोटल वर्क डन बाय द इंजन डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाय द इंजन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। यानी जो एफिशिएंसी है वो हमारी रेशियो है वर्क डन का और टोटल हीट जो सब्सटेंस ने जो है ली है सराउंडिंग से। तो उसको डिनोट करेंगे एफिशिएंसी को हम यहाँ ईटा से। तो ईटा हमारा हो जाएगा dW/Q। तो dW जो है हमारा हम उसको dL भी लिख सकते हैं या dW छोड़ सकते हैं। वर्क डन जो होगा हमारा और नीचे हीट जो उसने ली है सब्सटेंस ने वो हमने जैसे पहले बताया वो है हमारी L के इक्वल। तो ईटा हमारा हो जाएगा dW/L और इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन 1। ठीक है। एफिशिएंसी जो कार्नोट साइकिल की है हमारी या कार्नोट हीट इंजन की जो साइकिल पे वर्क करने लग रहा है उसकी एफिशिएंसी यहां से आ गई ईटा इक्वल टू dW/L। dW को dL भी लिख सकते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा अगर इसको हम dL/L लिख लेते हैं तो। और अगर टेम्परेचर की टर्म्स में हम बात करें तो जो कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल होते हैं हमारी या कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन है उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है हमारी 1 - T2/T1। और T2 जो होता है वो होता है टेम्परेचर ऑफ द सिंक जिसको हीट रिजेक्ट करता है सिस्टम और T1 होता है सोर्स का टेम्परेचर। तो यहां पर जो सिंक का टेम्परेचर है वो है हमारा T - DT और सोर्स का टेम्परेचर है वो T। तो एफिशिएंसी यहां से हमारी आ जाएगी ईटा इक्वल टू 1 - T - DT डिवाइड बाई T। और जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो एफिशिएंसी की जो वैल्यू है ईटा की वो हमारी आ जाएगी DT/T। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 ईटा इक्वल टू dW/L, फ्रॉम इक्वेशन 2 ईटा इक्वल टू DT/T। नाउ वर्क डन फ्रॉम पीवी डायग्राम। अगर पीवी डायग्राम से हम वर्क डन निकालेंगे तो हमें पता है एरिया एनक्लोज्ड बाय द कार्नोट साइकिल वो क्या होगा हमारा टोटल वर्क डन के इक्वल होगा। तो जो एरिया है साइकिल का हमारा जो साइकिल हम अब तक रीड आउट कर रहे हैं CBMLC इसका एरिया तो क्लियरली हमें फिगर से पता चल रहा है कि जो साइकिल है हमारे उसका जो शेप है वो है हमारी रेक्टेंगुलर टाइप। रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है तो यहां पर जो है रेक्टेंगल की जो एक साइड है वो हो जाएगी हमारी DP क्योंकि L से M जो है वो प्रेशर हमारा P - DP है और C से B के अलोंग जो है वो प्रेशर हमारा P है। तो जो C से L हमारा प्रेशर का डिफरेंस आया हमारा वो है DP। तो एक साइड तो होगी हमारी DP और दूसरी साइड जो बेस में हमारा बनेगा वो है हमारा V2 - V1 जो वॉल्यूम है इसकी। ठीक है। तो टोटल वर्क डन हमारा इस पीवी डायग्राम का आ जाएगा जो हम PdV भी करते हैं वो होगा हमारा DP इंटू V2 - V1। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 को अगर if you put the value of work done from equation 3 into equation 1 we get it is equal to dP/L into V2 - V1। so we have two values of efficiency, one in equation 2 and one in equation 4. If we equate both these equations that is 4 and 2 we have dP/L V2 - V1 is equal to DT/T। by taking DT on left side and V2 - V1 divided by L on right side we get dP/dt is equal to L/T V2 - V1। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है dP/dt is equal to L/T V2 - V1 इस इक्वेशन को जो है हम बोलेंगे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन और फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन।
तो इस इक्वेशन का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो हमने शुरू में भी बताया था कि ये इक्वेशन जो है वो डील करती है कि प्रेशर के चेंज करने से किसी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमें ये क्लियरली एक्सप्लेन करती है। अब जो इफेक्ट है प्रेशर के चेंज करने का, कि प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं या प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसकी नेचर क्या होगी, क्या बॉइलिंग पॉइंट जो है सब्सटेंस का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सिमिलरली प्रेशर के इंक्रीज करने से और डिक्रीज करने से सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इक्वेशन हमें सारा बताती है। तो अगर इस इक्वेशन को हम स्टडी करें तो इस इक्वेशन में जो टर्म्स हमारी आई है, डीपी जो है वो है हमारा चेंज इन प्रेशर, ठीक है। वो जनरली डीपी होता है हमारा P2 माइनस P1 यानी फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, डिवाइड बाय है dt। dt का भी मतलब क्या है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, दैट इसमें भी क्या होगा हमारा फाइनल टेम्परेचर माइनस क्या होगा आपका लोअर टेम्परेचर, इक्वल टू L बाई टी। L है हमारा जिस टाइम जो है स्पेस जो सब्सटेंस हमारा था उसने अपनी स्टेट चेंज की, उस ड्यूरेशन में कितने अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई थी, वो हमारी L लेटेंट हीट है। और T जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर है हमारा, जिस टेम्परेचर के ऊपर लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हुई थी और स्पेसिमेन ने यानी सब्सटेंस ने जो है अपनी स्टेट चेंज की थी। एंड V2 माइनस V1 आर द डिफरेंस बिटवीन फाइनल वॉल्यूम एंड इनिशियल वॉल्यूम। तो अब जो है इस इक्वेशन की एप्लीकेशन हम करते हैं। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, यानी जब भी कोई सब्सटेंस जो है हमारा अगर वो बॉयल करता है तो उसके ऊपर उस बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें स्टडी करना है। सो एज वी नो व्हेन एनी सब्सटेंस बॉइल्स द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस ऑलवेज इंक्रीजेज। ये हमें क्लियरली पता है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को अगर बॉयल करते हैं तो उसकी जो वॉल्यूम होती है सब्सटेंस की वो हमेशा इंक्रीज करती है, यानी फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा हो जाएगी। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट V2 माइनस V1 इज ग्रेटर देन 0, मीन्स जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आया है हमारा वो पॉजिटिव है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, श्योर है हमारा। तो अगर इस वैल्यू को जो V2 माइनस V1 हमारा यहाँ से पॉजिटिव आया, इसको अगर क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन के अंदर हम रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा dP बाई dt इज इक्वल टू L बाई टी, और V2 माइनस V1 की जगह आ जाएगा पॉजिटिव। तो L जो है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर भी हमें पता है हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो dP बाई dt यहाँ से जो है हमारा पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ हमारा कि जो dP और dt की नेचर है वो दोनों सेम होंगी। अगर dP आपका पॉजिटिव है तो dt भी पॉजिटिव होगा, तभी dP बाई dt पॉजिटिव बनेगा। और dP अगर नेगेटिव होगा तो dt भी हमारा नेगेटिव होगा, ताकि माइनस माइनस कैंसिल होकर हमारा प्लस बन जाए। मीन्स dP और dt दोनों की जो नेचर है वो क्या होगी हमारी सेम होगी, यानी जो इफेक्ट हमारा dP के अंदर हम रीड करेंगे वही इफेक्ट हमारा dt के अंदर हमें मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर हम हिली एरिया के ऊपर जाते हैं तो हिली एरिया के ऊपर जाने से हमें पता है कि जो प्रेशर है हमारा वो डिक्रीज होता है, यानी फाइनल प्रेशर डिक्रीज होगा तो dP जो है वो हमारा नेगेटिव होगा। तो dP नेगेटिव होगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का या किसी और सब्सटेंस का वो भी नेगेटिव हो जाएगा जो dt है। और dt नेगेटिव होने की वजह से क्या हुआ कि जो फाइनल टेम्परेचर बना हमारा, यानी हिली एरिया के ऊपर जिस टेम्परेचर के ऊपर सब्सटेंस बॉयल करेगा वो भी क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा ड्यू टू डिक्रीज इन द प्रेशर,
क्योंकि जब भी हम हिल्स के ऊपर जाते हैं तो प्रेशर जो है वो हमेशा डिक्रीज होता है, और प्रेशर का जो इफेक्ट होगा वही इफेक्ट हमारा टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर का होगा, जो कि हमने अभी भी एक्सप्लेन किया है। तो हिली एरिया के ऊपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी जो सब्सटेंस का है वो हमेशा डिक्रीज होता है, और इसको जो है क्लियरली एक्सप्लेन करती है हमारी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। सेकंड जो एप्लीकेशन है इस क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की, वो हमारी इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड। तो यहां पर हम दो तरह के सॉलिड लेंगे। फर्स्ट आर दो सॉलिड व्हिच वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्यूरिंग मेल्टिंग। ये जनरली हमारे जितने सब्सटेंसेस हैं हमारे मैक्सिमम वो इसी नेचर के होते हैं। व्हेन एनी सब्सटेंस मेल्ट्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल वैक्स, तो वैक्स को जब भी हम मेल्ट करेंगे तो उसकी जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज होती है, यानी फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज होगी। फिर से V2 माइनस V1 जो फैक्टर है हमारा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और V2 माइनस V1 अगर पॉजिटिव हो गया तो dP बाई dt वो अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, और dP और dt की नेचर फिर से क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अगर हिली एरिया के ऊपर हम जाते हैं और वहां पर जाकर अगर हम मेल्टिंग पॉइंट जो वैक्स है अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट स्टडी करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वैक्स का वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जो टेम्परेचर है मेल्टिंग टेम्परेचर वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड केस है हमारा फॉर दो सॉलिड्स whose volume decreases from going to solid to liquid form, यानी वो सॉलिड्स जिनकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होती है आफ्टर मेल्टिंग। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है वाटर का। हमें पता है कि जो आइस की वॉल्यूम होती है वो जब मेल्ट होके वाटर के अंदर कन्वर्ट होती है उससे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है हमारी, यानी आइस जब कन्वर्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है तो जो वाटर की वॉल्यूम है वो आइस की वॉल्यूम से कम है, तो V2 माइनस V1 जो फैक्टर है हमारा वो यहां से नेगेटिव हो जाएगा। और V2 माइनस V1 अगर नेगेटिव हो गया तो dP बाई dt जो है वो भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, विच मीन्स नेचर ऑफ dP एंड dt आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर एक हमारा इंक्रीज होगा तो दूसरा जो है हमारा वो डिक्रीज होगा, और अगर एक हमारा डिक्रीज होता होगा तो दूसरा हमारा इंक्रीज होगा, यानी दोनों का जो बिहेवियर है वो एक दूसरे से अपोजिट होकर चलेगा। तो अगर हिली एरिया की ही बात हम करते हैं तो हिली एरिया के ऊपर जाकर अगर हम वाटर की मेल्टिंग का जो केस है अगर उसको स्टडी करते हैं कि जब आइस मेल्ट होगी वाटर के अंदर कन्वर्ट होगी, तो उस केस के अंदर हमें पता है कि हिल एरिया पे जाने से जो प्रेशर है हमारा वो डिक्रीज होगा। तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो dP नेगेटिव हो जाएगा, तो dt जो हमारा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वाटर का या आइस का वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो दोनों एप्लीकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, इनको जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है ये क्लियरली एक्सप्लेन करती है। तो जो दोनों फॉर्म हमने ये डिस्कस की, इनके ऊपर क्वेश्चन भी कई बार आता है कि सपोज करो क्वेश्चन आ गया कि अगर हम हिल एरिया के ऊपर जाते हैं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो कितना होगा, और ऑप्शन हमें दे देते हैं कुछ इस तरह से 100 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पर जो है फिर से यही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि क्योंकि जब ऊपर हम जाएंगे हिल एरिया पे तो dP जो हमारा वो नेगेटिव होगा, यानी प्रेशर डिक्रीज होगा। और अभी हमने बताया था प्रेशर डिक्रीज होते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उस केस के अंदर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस ना रह के जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर आ जाएगा। यानी अगर इस
एग्जाम्पल की बात करें, जो क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया उसमें 78 डिग्री जो है वो हमारा कोरस्पॉन्डिंग आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आर्टिकल आज का फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन जो कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम फिर आगे कवर करेंगे।